Hello everyone, welcome to the Chromatids. Today we are going to discuss the syllabus of UGC NET for Life Sciences subject. This is our team. We are making first time videos. If you are an aspirant for life sciences and biotechnology and research and development field, if you are working in that field, you can contact us for CSIR UGC NET lectures, research paper analysis, types of fellowships and grants notifications, any kind of news updates happens in our society regarding the science and technology, recruitment updates on biotechnology and research and development. Now we are moving to the question paper format. The question paper separated into three sections like A, B, and C section. Section A covers general science, quantitative reasoning and analysis, research aptitude. Now, B and C section consider the all 13 units like molecular interaction relevant to biology, cellular organization, fundamental processes, cell signaling and cell communication and cell signaling, developmental biology, system physiology, plant and same regarding animal also, the inheritance biology, diversity of life forms, ecological principles, evolutions and behavior applied to biology, methods in biology. Now we are going to discuss in a descriptive way all the units which are provided by the UGC and NET, जैसा कि molecular and interaction relevant to biology. This is our first unit which covers their structure of atoms, molecules and chemical bonds, composition and structural and functional biomolecule, carbohydrate, protein, all kind of structure about the biomolecules, stabilizing the interaction, van der Waals force, electrostatics, hydrogen bonding, hydrophobic interactions, principle and biophysical chemistry. The first chapter will cover these all kind of topics: metabolism of carbohydrates, lipids, amino acids. नेक्स्ट चैप्टर में है हमारे पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, जिसमें कि स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल मेम्ब्रेन, लिपिड bilayer and membrane, protein diffusion, osmosis, ion channel, active transport, एक्सेट्रा. इस तरीके के सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे. स्ट्रक्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन ऑफ इंटरसेलुलर ऑर्गेनेल्स लाइक सेल वॉल, सेल न्यूक्लियस, mitochondria, Golgi bodies, lysosome. These all kind of cell organelles will cover in this topic. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीन एंड क्रोमोसोम्स, जिसमें कि हमें ओपेरॉन, यूनिक एंड रेपिटेटिव डीएनए, इंटरप्टेड जीन एंड जीन फैमिलीज, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटिन, क्रोमोसोम्स, हेटेरोक्रोमेटिन, इस तरह के सारे टॉपिक्स कवर होंगे इस जीन एंड क्रोमोसोम के टॉपिक्स में. सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल, जिसमें माइटोसिस, मायोसिस और रेगुलेशन, सेल साइकिल के सारे स्टेप्स कवर किए जाएंगे. माइक्रोबियल फिजियोलॉजी में ग्रोथ क्या क्या है, स्ट्रेटेजी ऑफ सेल डिवीजन क्या क्या है, वो सारे कवर होंगे इसमें. नाउ थर्ड चैप्टर इज लाइक फंडामेंटल प्रोसेसेस. डीएनए रेप्लिकेशन आएगा उसमें, रिपेयर एंड रिकॉम्बिनेशन होगा, आरएनए सिंथेसिस और प्रोसेसिंग आएगा उसमें. फिर उसमें आरएनए सिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग में जैसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर एंड रिसेप्टर्स, इस तरह के सारे टॉपिक्स इसमें कवर किए जाएंगे. प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग, राइबोसोम मेन मेन जो है राइबोसोम जो है इसमें कवर किया जाएगा. फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, टीआरएनए, ये सारे इसमें कवर किए जाएंगे. कंट्रोल ऑफ जीन एंड एक्सप्रेशन एंड
कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन एंड ट्रांसलेशन लेवल, ये सारे कवर किए जाएंगे, जिसमें वायरस, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक जीन का रोल ऑफ क्रोमेटिन जीन एक्सप्रेशन एंड जीन साइलेंसिंग, ये सारे इसमें हम आगे चल के कवर करेंगे। सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग, होस्ट होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन इसमें कवर होगा। इसमें रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एंट्री प्रोसेस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ पैथोजेंस लाइक बैक्टीरिया किस तरीके से एंटर करता है, ये सारे होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन में कवर किए जाएंगे। सेल सिग्नलिंग, जिसमें हॉर्मोन्स और उसके रिसेप्टर्स, इन सारे तो जैसे टॉपिक्स को कवर किए जाएंगे, जिसमें पाथवेज क्या क्या होंगे, जी प्रोटीन क्या है, वो सारे इसमें कवर किए जाएंगे। सेल कम्युनिकेशन, रेगुलेशन ऑफ हेमेटोपोइसिस, जनरल प्रिंसिपल ऑफ सेल कम्युनिकेशन, इस तरह के सारे टॉपिक सेलुलर कम्युनिकेशन में कवर किए जाएंगे। कैंसर कैंसर इसमें टॉपिक है, जिसमें कि जेनेटिक रीअरेंजमेंट, किस तरीके की जेनेटिक चेंजेस हो रही हैं, ऑन्कोजीन्स, ट्यूमर सप्रेसर जीन कौन कौन से हैं, वो सारे कवर किए जाएंगे इसमें। नेक्स्ट है इनेट एंड एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। इनेट और एडेप्टिव इम्यून सिस्टम को इसमें कवर करेंगे, जिसमें बी सेल, टी सेल, एपिटोड, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज, मॉलिक्यूल, ये सारे इसमें कवर करेंगे हम। डेवलपमेंटल बायोलॉजी नेक्स्ट हमारा है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जिसमें बेसिक पहला पहला चैप्टर है, जिसमें पहला टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें पोटेंसी, स्पेसिफिकेशन, इंडक्शन, डिटर्मिनेशन एंड डिफरेंशिएशन, इस तरीके के सारे टॉपिक्स इसमें कवर करेंगे हम। गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन एंड अर्ली डेवलपमेंट, इसमें हम प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, क्या क्या कैसे प्रोडक्शन होता है सेल सरफेस पे, मॉलिक्यूल, एक स्पर्म और एग का रिकॉग्नाइजेशन, ये सारे चैप्टर हम सारे टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे। morphogenesis and organogenesis in animals, cell aggregation and differentiation in dictocelitum, और इसमें पोस्ट एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट, लार्वल फॉर्मेशन, ये सारे इसमें कवर करेंगे हम। मॉर्फोजेनेसिस इन प्लांट, वैसे ही जैसे एनिमल में अलग अलग एग्रीगेशन एंड डिफरेंशिएशन था, इसमें सारे प्लांट्स के बारे में कवर करेंगे हम। प्रोग्राम्ड और सेल डेथ, एजिंग, सीक्वेंस, सेंसेशंस, सारे इसमें कवर करेंगे हम। नेक्स्ट सिक्स चैप्टर है, जिसमें कि सिस्टम्स फिजियोलॉजी है प्लांट का। इसमें सारे प्लांट के फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म, लाइट हार्वेस्टिंग, कॉम्प्लेक्सेस मैकेनिज्म, ये सारे कवर होंगे। रेस्पिरेशन एंड फोटो रेस्पिरेशन, सिट्रिक एसिड साइकिल, माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, एटीपी सिंथेसिस, ये सारे इसमें रेस्पिरेशन एंड फोटो रेस्पिरेशन में हम कवर करेंगे। ये सारे जितने भी टॉपिक मैंने बताए हैं इसमें, ये सारे हम अपने आने वाले टाइम में सारे वीडियोस में हम कवर करते जाएंगे। जैसे नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म है इस पार्ट का, तो जिसमें नाइट्रेट एंड अमोनियम एसिमिलेशन, अमीनो एसिड, बायोसिंथेसिस, ये सारा इसमें हम कवर करेंगे। प्लांट हार्मोन, बायोसिंथेसिस, स्टोरेज, ब्रेकडाउन, ये सारा इसमें हम कवर करेंगे। सेंसरी फोटोबायोलॉजी, स्ट्रक्चर, फंक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फोटोक्रोम्स, ये सारे इसमें हम सेंसरी फोटोबायोलॉजी टॉपिक में हम कवर करेंगे। सोल्यूट एंड ट्रांसपोर्ट सोल्यूट ट्रांसपोर्ट एंड फोटो एसिमिलेट ट्रांसलोकेशन, अपटेक, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर, ये सारा इसमें आएगा, जो कि हम आने वाले टाइम में हम एक एक टॉपिक पे सब टॉपिक बना बना के हम सारा कवर करते जाएंगे। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स लाइक बायोसिंथेसिस ऑफ टर्पेन्स, फिनॉल्स, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स एंड देयर रोल्स, सारे इसमें उस तरीके के सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। स्ट्रेस फिजियोलॉजी, रिस्पॉन्सेज ऑफ प्लांट ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक, सारा बायोटिक एंड एबायोटिक सारा इसमें हम कवर करेंगे स्ट्रेसेस को। और जैसे अभी प्लांट का था, वैसे ही सिस्टम फिजियोलॉजी एनिमल का भी होगा। ब्लड सर्कुलेशन, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ये सारा हम कवर करेंगे। इसमें इसमें एक इम्पोर्टेंट है
जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सारे तरीके के सिस्टम जितने भी है, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर हमारा एक एक लेक्चर होगा, जिसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सब सब कुछ हम कवर करने वाले हैं। और सेंस ऑर्गन्स, थर्मो रेगुलेशंस, स्ट्रेस एडाप्टेशन, एंडोक्राइनोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन, इस तरह के सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं इसमें। नेक्स्ट है हमारा इंटर इनहेरिटेंस बायोलॉजी, जो इसमें मेंडेलियन प्रिंसिपल आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, एक्सटेंशन ऑफ मेंडेलियन प्रिंसिपल्स, ये सारे हम टॉपिक कवर करने वाले हैं। जीन मैपिंग मेथड क्या होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस क्या होते हैं, माइक्रोबियल जेनेटिक्स, ह्यूमन जेनेटिक्स और क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स, इन सारे को हम एक एक सब पॉइंट्स में और इंफोडायग्रामेटिक वे में हम इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। म्यूटेशन क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड न्यूमेरिकल अल्टरेशन ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम के कितने कितने तरीके के अल्टरेशन होते हैं, स्ट्रक्चरल और न्यूमेरिकल, ये सारे हम कवर करेंगे। रिकॉम्बिनेशन, ये हम कवर करने वाले हैं। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, जो कि हमारे अभी मैंने बताया कि सेक्शन बी एंड सी, तो आई थिंक ये सेक्शन सी में आएगा, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल और मेथड, टेक्सोनॉमी की क्या प्रिंसिपल है और कैसा क्या मेथड है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज जिसमें हम पढ़ने वाले हैं, हायरार्किकल टैक्सास के बारे में पढ़ने वाले हैं, बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं इसमें। लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, मल्टी सेलुलर फॉर्म्स, ये सारे हम इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे आगे चल के। आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सब के बारे में आगे हम देखने वाले हैं। नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जिसमें मेजर हैबिटाइट, टाइप्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट, जियोग्राफिकल ओरिजिन क्या क्या होते हैं, ये सारे हम कवर करेंगे आगे के वीडियोस में। ऑर्गेनिज्म ऑफ हेल्थ एंड एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस क्या क्या है, वो सारा हम देखेंगे। ऑर्गेनिज्म ऑफ कंजर्वेशन कंसर्न, उसके उसके रिगार्डिंग भी हम उसके भी परसेप्शन के बारे में देखेंगे, कैसे क्या क्या कंसर्न है उसके। नेक्स्ट 10th यूनिट जो है हमारा इकोलॉजिकल प्रिंसिपल है। इकोलॉजिकल प्रिंसिपल, जिसमें कि द इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, हैबिटेट क्या होता है, स्पेसीज इंटरेक्शन क्या होते हैं, ये सारे हम इसमें कवर करने वाले हैं। पॉपुलेशन इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी, इकोसिस्टम, अप्लाइड इकोलॉजी, इस तरीके के सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे। और सारे टॉपिक्स को हम स्मॉल स्मॉल वीडियोस में, जिसमें इजीली समझ में आए, हम उसको कवर करके उस पर अपलोड करेंगे। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, बायोजियोग्राफी क्या होता है, कंजर्वेशन बायोलॉजी क्या होता है, ये सारे हम कवर करने वाले हैं अपने आने वाले वीडियोस में। नेक्स्ट 11th यूनिट है इसका, इवोल्यूशन एंड बिहेवियर, जिसमें इमरजेंस ऑफ इवोल्यूशनरी थॉट्स, ओरिजिन ऑफ सेल्स, यूनिसेलुलर इवोल्यूशन, इवोल्यूशन, ये सारे हम कवर करेंगे। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है, कब से स्टार्ट हुआ है चीजें, उन सब ओरिजिन से लेके हम अभी करंट तक आगे बढ़ते चलेंगे। मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन क्या होता है, उसके मैकेनिज्म्स, ब्रेन बिहेवियर एंड इवोल्यूशन, ये सारा हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा बायोटेक का पार्ट है, आई थिंक अप्लाइड बायोलॉजी जिसको बोलते हैं, जिसमें माइक्रोबियल फर्मेंटेशन एंड प्रोडक्शन, वो सारा आएगा, जिसमें एप्लीकेशन ऑफ इम्यूनोलॉजिकल प्रिंसिपल, वैक्सीन एंड डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, इसमें मेनली पढ़ेंगे हम आगे चल के। जीनोमिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन अबाउट द हेल्थ एंड एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग द जीन थेरेपी, ये सारे हम पढ़ेंगे। ब्रीडिंग इन प्लांट्स, एनिमल्स इंक्लूडिंग मार्कर्स, ये सारे हम देखने वाले हैं। बायो रेमेडिएशंस, ये तो सिंपल सा है। बायोसेंसर्स, अभी 13 यूनिट जो है, जो हमारा लास्ट का आखिरी यूनिट है, ये मेन बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है, जिसमें बहुत ज्यादा लंबा सिलेबस है, जिसमें हम एक एक चीज को डीपली पढ़ेंगे। मैंने ऐसे आउटलाइन बनाई है, जिसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स के सब सब टॉपिक्स हैं, तो हम उसको डीपली इसमें कवर करेंगे, जिसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए मेथड्स हैं,
जिसमें कि आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन्स, इस तरीके के सारे टॉपिक्स को कवर करना है हमें। एनालिसिस ऑफ आरएनए, डीएनए, प्रोटीन्स एंड टू डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, आइसो इलेक्ट्रिक फोकस जेल्स, ये सारे कवर करेंगे हम इसमें। हिस्टोकेमिकल एंड इम्यूनो टेक्निक्स, जिसमें एंटीबॉडी जनरेशन, डिटेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स यूजिंग एलाइजा, रिया, ये सारे टेक्निक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। बायोफिजिकल मेथड, बायोफिजिकल मेथड जिसमें कि मॉलिक्यूलर एनालिसिस, अल्ट्रावायलेट रेज के बारे में, फ्लोरोसेंस और सर्कुलर डाइक्रोम्स, ये सब के बारे में हम देखेंगे। स्टैटिकल मेथड जिसमें सेंट्रल टेंडेंसी मेजरमेंट होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, बाइनोमियल और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये सारे उसमें कवर किए जाएंगे, जिसमें जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एक्स टेस्ट, ये सारे होते हैं, काई काई स्क्वायर टेस्ट, सॉरी, काई स्क्वायर टेस्ट, ये सारे हम कवर करेंगे। रेडियो लेवलिंग टेक्निक्स क्या होते हैं? रेडियो लेवलिंग टेक्निक्स जिसमें मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रेडियो स्टोप्स नॉर्मली यूज इन बायोलॉजी, इस तरीके के सारे टॉपिक्स आएंगे। मॉलिक्यूलर इमेजिनिंग, रेडियो एक्टिव मटेरियल, सेफ्टी और गाइडलाइंस क्या क्या है, ये सारे हम देखने वाले हैं। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल मेथड जिसमें सिंगल न्यूरॉन्स रिकॉर्डिंग, ये सारे कवर करेंगे। मेथड्स इन फील्ड ऑफ बायोलॉजी, जिसमें मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग फील्ड ऑफ बायोलॉजी, जिसमें हम मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग पॉपुलेशन, ऑफ डेंसिटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स, दोनों ही हम कवर करेंगे। ये सारे 13 यूनिट्स थे, जिसमें यूजीसी सी एस आई आर नेट के सिलेबस में आता है, जिसमें लाइफ साइंसेस का ये सारे चैप्टर्स हैं, जिसके ऊपर हम आगे काम करने वाले हैं। और ये हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। फॉर एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन please contact us on this phone number. This is also the WhatsApp number also. Instagram, you can contact us on Instagram. Write us mail for any kind of query. Thank you so much.